Hello everyone, this is Ashish and Anshuman Mehta will be joining us shortly. This is the first podcast in my channel Talk 4712 and I've made few podcasts before but not on this channel, on my third YouTube channel. I basically do some podcast, but in this podcast will be specially directed towards competitive examination, higher studies, engineering field in general. Now this podcast, basically my mother tongue is Hindi and Anshuman's mother tongue is Hindi. So two friends whose mother tongue happens to be Hindi will obviously be talking most of the time in Hindi, but I've done a good job of putting subtitles for all of you guys who do not understand Hindi, and a lot of majority, like around 50% of the part, we will be talking in English, and in the beginning we talk in Hindi, but yes, if you can pass through that phase, yes, we'll be talking in the technical part, mostly we'll be talking in English. For the other part, we'll be having subtitles. Now, podcasts in general are for your ears, not for your eyes. So this is a 30-minute long podcast, and by the way, it is just the first part. We basically talked about two topics that day we did the podcast. Number one, about life in IIT Madras and what was Hyperloop like for Anshuman Mehta. And second part, we talked a little bit about me, my channel, and my trajectory and how it all started. This is the first part in which we are going to cover Anshuman Mehta's life in IIT Madras, initially as a MS student and then as a Ph.D. And then what was his experience of Hyperloop, what was it like for him to meet Elon Musk and present their idea in Los Angeles. Now, like I was saying, podcast is basically for your ears, but especially for this one, you will be getting a lot of good idea if you go through the video itself, because I'm showing some of the part of the shooting done there, that Anshuman shot a lot of videos and we have shared a lot of pictures which might be interesting for you. But yeah, you can listen to it also, and obviously if you're not comfortable in both Hindi and English, then you'll need to go through the subtitles too. I've done as good as I can. One thing I'll be saying right now, for the first 2 minutes there is some background noise, and that comes from the fan that was on in the beginning of the podcast recording, and then I turned it off after 2 minutes, so that background noise will be going away in 2 minutes. So that's about it, man. I hope each and every one of you enjoy it a lot. Comment it down below, give your feedback. This is my first podcast on video and I'll surely improve in the next one, and I'll be bringing much more new guests who will be very interesting. Their life will be very interesting, their experiences will be interesting, and that's the point of podcast, you learning from someone else's experience. Let's begin it. मस्त है, हो गया मेहता, मिल गया ना, स्टार्ट करें. Everybody, this is the first podcast of Talk 4712 channel and I have my guest Anshuman Mehta. हम लोग ज़्यादा देर तक अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग बैक टू हिंदी आ जाते हैं. मेहता हाय बोलो अपने फैंस को. हमारे पास 2 कैमरा है. हेलो. आज हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे अंशुमन? कैमरा, बिकॉज लेने वाले हो नया या ले चुके हो नया? हाँ, मैंने एक नया कैमरा लिया. देखो ये कैमरा देख रहे हो, ये जो कैमरा है ये OnePlus 7 नहीं 660 का है, और इससे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को कहाँ से कहाँ ले गया मैं, 5000 से 42,000. ठीक है, अब अपन को थोड़ा प्रोफेशनल होने का टाइम आ गया, तो हम लेंगे सोनी A6400, तो मैंने ऑर्डर कर दिया. हम लोग कहीं भी देख सकते हैं मेरा. लेकिन कैमरा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे IIT मद्रास के बारे में, और जो भी मन करेगा वो बात करेंगे. ठीक है, ये पॉडकास्ट है, ये चल सकता है आधा घंटा, ये चल सकता है 1 घंटा, ये चल सकता है 1.5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द बैटरी मेमोरी का. ठीक है, तो कितना भी लंबा चल सकता है. तुम लोग को हमारा शक्ल अगर इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो पॉडकास्ट एक्चुअली ऐसी होता है कि कान में तुम्हें हेडफोन डाल कर तुम जो भी अपना काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हारा ईयर्स फ्री है तो तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो. मैंने भी ऐसे हज़ार पॉडकास्ट सुने हैं कॉलेज के टाइम से लेकर अभी तक. इससे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है. बेसिकली तुम किसी और के एक्सपीरियंस सुन रहे हो तो उससे कुछ सीख रहे हो. तो अगर तुम्हारा ईयर्स फ्री है तो यूटिलाइज़ कर सकते हो. पॉडकास्ट कोई देखता नहीं है. क्यों भाई, कभी पॉडकास्ट देखा तुमने सुना भी नहीं होगा. ठीक है, तो
हम लोग बस ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या चीज़ के बाद पहले तो मैं था रूम दिखा अपना, ये IIT मद्रास में मैं बैठा हुआ हूँ और अंशुमन इस रूम में पिछले 1 साल से तो है। अरे इस रूम की सब तारीफ करते हैं हमेशा जब भी कोई भी आता है। इसमें से कुछ चीज़ें मुझको पहले से ही मिली हुई हैं, जैसे कि फ़ैन ऑफ कर दे रहा हूँ। रैबिट हुआ, मैं तो हम लोग को दोबारा रैबिट, हाँ और देखा मैं था कुछ ये रैबिट जैसे हुआ, ये मुझको पहले से ही मिला है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये सीनियर्स का पुश्तैनी है, पुराने पुश्तैनी चीजें। They will pass down। और भी यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें थी। यहाँ पर ना ये दीवार मैंने पूरी पेंट की है, वैसे इस दीवार में बहुत अजीब अजीब चीज की फोटोज बनी हुई थी। एग्जैक्टली इस पॉइंट में एक लड़की बनी हुई तो तूने पेंट क्यों किया ये बता? तो रैबिट को पेंट करना था। वो लड़की बहुत ही डिप्रेसिंग थी। अच्छा, वो इसीलिए पेंट कर दिया। वो लड़की बहुत ही डिप्रेसिंग थी, इतनी डिप्रेसिंग थी कि वो बस उस तरफ मुंह करके बैठी रहती थी और कुछ किसी चीज का इंतजार करती रहती थी। तो मुझको बहुत ही ग्लूमी फीलिंग आता था जब मैं सोते वक्त उस तब करवट बदलता था, मैं कभी फट जाती थी कि क्या है भाई वो। और गजब गजब लंबे लंबे बाल थे उसके। और उसके बाद फिर यहाँ पर उस पार्ट पे एक वहाँ पर उस पार्ट पे एक बच्चे की फोटो थी और उसकी आंखें एकदम अजीबोगरीब थी, एक आंख ऐसे एक आंख वैसे, तो थोड़ा हॉलोवीन टाइप था यहाँ पर। लेकिन मेहता ने इसे फिर इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया। डेकोरेशन, और बहुत टाइम मिलता है यहाँ पर चीज़ें करने का। प्लस मेहता अब MS नहीं PhD स्टूडेंट है, तो इसके पास टाइम का कोई कमी नहीं। स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ यार, कुछ IIT मद्रास के बारे में बताओ। जनरली क्वेश्चन आंसर होता है। नहीं वो इंटरव्यू होता है, पॉडकास्ट में कन्वर्सेशन होता है। तू बता IIT मद्रास के बारे में बता। वैसे मैं कितने 1 साल से मैं आते जाते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ करके। बाय द वे इस बार कन्वोकेशन में PM मोदी जी आए, तो फुल सिक्योरिटी यहाँ पर स्टूडेंट से ज़्यादा लाइक पुलिसमैन भी दिखे। उस दिन मैं यहाँ सुबह आया तो मुझे 7 बजे हॉस्टल भी नहीं घुसने दे रहे थे कि जाओ नहाना वाना भी नहीं है, निकलो यहाँ से। मैंने बोला भाई इसरो बोला जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और खतरनाक चीज़ थी कि पहली बार मैं यहाँ पर 6 बजे सुबह खाना मतलब नाश्ता करने गया, थैंक्स टू मोदी जी, मतलब बेस्ट टाइमिंग चेंज हो गया था। ओके, सो मेरे को पेंटिंग का बहुत शौक है, कुछ हाँ कुछ तूने क्या बनाया इसमें ये बताओ। कुछ खतरनाक भी है उसमें से, लाइक कैन नॉट शो वाले। हाँ मतलब मैं तो जनरली अश्लील पेंटिंग ज़्यादा बनाता मैं तो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट है। मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा मैं तो बस दिखा दे ऊपर से। देखो हम लोग इस पॉडकास्ट में ना मेनली IIT मद्रास के लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अंशुमन से बेटर कोई नहीं है। और अभी IIT मद्रास क्या जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। अगर तुम्हें मास्टर्स करना है, न्यूज़ आया नया कि क्या MS में फ़ीस हाइक हो गया है और स्टाइपेंड बंद हो गया है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें हायर एजुकेशन करना है और IIT मद्रास तुम्हारा गोल है, तो है बहुत लोगों का, मुझे पता है पर्सनली। उस दिन सेमिनार में भी वो लड़की क्या वेस्ट बंगाल से थी ना वो लड़की, याद है? लेकिन उसका गोल है IIT मद्रास। मैं एक गुजरात के लड़के से पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि मुझे IIT मद्रास आना है, बस इसीलिए क्योंकि इसका रिसर्च बहुत हाई लेवल पे चल रहा है और अभी टॉप लेवल पे आ रहा है। IIT बैंगलोर के कंपैरिजन में कैसा है? हाँ, IIT बैंगलोर के टक्कर में देता है रिसर्च में। हाँ बहुत लोगों का तो सपना ही है कि या आइदर IIT मद्रास और IIT बैंगलोर, बाकी रिसर्च और कहीं नहीं करना। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन इतना फाड़ू मिलता है कि सीधा लोग उड़ के निकलते हैं, कहीं भी जहाँ जाना है जा सकते हो। यहाँ के प्रोफेसर्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सम ऑफ द टॉप प्रोफेसर्स ऑफ IIT मद्रास, बोलो नाम बताओ। चक्रवर्ती और क्या हुए फुल नेम सत्यनारायण, बहुत खतरनाक नाम है उनका। SRC इनिशियल रिसेंटली पता लगा उनका बीचों का नाम SRC, R स्टैंड फॉर, लेकिन मैं भूल गया फिर से। साउथ नेम ना और C फॉर साउथ नेम में चक्रवर्ती कैसे है? अरे हाँ, फर्स्ट टाइम मैं भी सोचा कि बंगाली, बट नहीं, यहाँ पर एक बहुत हाई कास्ट ब्राह्मण्स होते हैं वो। ओके, टेक्निकल ड्राइंग ही दिखी है मुझको। अच्छा, अंशुमन मेहता का टॉपिक है अभी मॉर्फिंग रिलेटेड। तो ये किस चीज़ में काम करता है? तो हाई लेवल शिट में काम करता है। ये दिखाना ज़रूरी है ना।
मेहता का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फाइन आर्ट. Drunk girls. दिखाना भाई, अच्छा ड्राइंग बनाया, लेकिन बनाया ऐसा है कि ये दिखाना नहीं चाह रहा. It's not secret by the way. प्लीज़ फॉलो अंशुमन मेहता ऑन इंस्टाग्राम. ये बहुत अच्छा फोटोग्राफी भी करता है. एक्चुअली ये उसी का कैमरा है. ये पता नहीं बनाया अच्छा था, फिर इसे गुस्सा आ गया तो इसने काट दिया शायद. बैक टू द टॉपिक आते हैं. बैक टू द टॉपिक. व्हाट इज़ IIT मद्रास? यहाँ पे तुम्हारा लाइफ कैसा हुआ? तुमने ज्वाइन किया था जून 2017 में. उस टाइम पे तुम ऐसे ही रूम पे रहते थे, लेकिन ऊपर फ्लोर में. हाँ, ऊपर बहुत गर्मी थी तो शिफ्ट कर लिया फिर नेक्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि एज अ MS स्टूडेंट तुमने? एज अ MS स्टूडेंट आई जॉइंड इन MS. तो आई वाज सिलेक्टेड इन मेनी ब्रांचेस, लेकिन एरोस्पेस में पहले से पुराना एक उधर लगाव टाइप. एरोस्पेस नाम ही पता नहीं क्या है एरोस्पेस, लेकिन एरोस्पेस करना है. एरोस्पेस लाइक उसके बाद फिर यहाँ पर स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि कोर्सेज थे फर्स्ट सेम तो कोर्सेज में ज़्यादातर बिजी रहते थे. फिर डेंगू हुआ मुझको बीच में. अच्छा, हाँ, मरते बचा हुआ है. यहाँ पर HN में बस डेंगू प्रॉब्लम. अरे कुछ लोग मर भी गए थे. अब थोड़ा ठीक हो गया. एक स्टूडेंट के साथ डेथ भी हुआ था ना उस टाइम. खतरनाक था. आते मेन होता है कि सेकंड टाइम डेंगू जो होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक था. उसको सेकंड टाइम डेंगू हुआ था और उस टाइम वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फॉल घूमने चले गया था. लाइक उसको पता नहीं था कि उसको डेंगू है और वो टाड़ा फॉल और वहाँ पर हाथ की बहुत सीरियस हो गई. तो सेकंड टाइम मीन डेंगू ज़्यादा खतरनाक होता है. तुझे तो फर्स्ट टाइम हुआ था ना? हाँ, तो मुझको बच्चों से बहुत डर लगता है. एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है अभी वैसा के पास. मच्छरदानी ऑल आउट सब है. ऑल आउट तो सूंघते ही लोग और नशे में आ जाता है. तो घुमाते ही रहो तो. हाँ, उधर तुम्हारा नेट दिखा रहा था यार, मच्छर के प्रोटेक्शन के लिए नेट दिखा रहा था. अपना बैकअप कैमरा है ना यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है? 42,000 पहुंचा है उससे. ओके, तो हाँ, उसके बाद फिर मैं स्विमिंग स्टार्ट किया यहाँ पर. मैं वहाँ से बहुत सारी नई आदतें सीखा. मैं तो कांड पे कांड होने वाला है. स्विमिंग से मेरा दांत गया. सेम दांत है ना? हाँ, यही दांत. ये दांत 2 बार टूटा है. 2 बार टूटा. एक तो जब पहली बार टूटा तो आधा टूटा था और दूसरी बार जब साइकिल से गिरा तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया दांत. साइकिल से कब गिरा? अच्छा, आफ्टर पौंडी ट्रिप में. आफ्टर पौंडी. तो उसके बाद फिर एज अ रिसर्च टॉपिक मेरा रिसर्च मॉर्फोलॉजी के ऊपर है. सो इट्स लाइक अगर हम लोग मॉर्फिंग कर रहे हैं किसी एयरक्राफ्ट में तो उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं. मॉर्फिंग मीन्स शेप चेंज करना, लाइक आयरन मैन सूट स्टाइल. तो ट्रांसफॉर्मर टाइप ना? ट्रांसफॉर्मर, हाँ, वो ही बोल सकते हैं. मैं आयरन मैन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज उसमें जो नैनो टेक यूज़ किया है ना. सो मेरा जनरली काम यही है कि मैं मॉडलिंग करता हूँ और मुझको अपना प्रॉब्लम इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आई थॉट ऑफ डूइंग PhD इन दिस ओनली, क्योंकि इट्स वेरी टाइम टेकिंग, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट ब्रांचेस का मिला जुला है. एक्चुअली तुम्हारा प्रोजेक्ट फ्लैटरिंग ऑफ विंग से स्टार्ट हुआ था ना? कि विंग तो उसका स्टार्ट हुआ था फ्लैपिंग ऑफ विंग. स्टार्ट हुआ था डिफरेंट विंग से, एरो जनरल एरो डोमेन से स्टार्ट हुआ था. अबाउट विंग टिप वोर्टिसेस, लाइक मेरा बीटेक प्रोजेक्ट विंग टिप वोर्टिसेस था. तो उसमें क्या होता है कि इफ कोई विंग के सबसे साइड में, ओके मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हाउ डू एयरक्राफ्ट फ्लाई, ठीक है. सो क्योंकि नीचे में ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर में कम प्रेशर होता है, तभी वो लिफ्ट होता है. सिंपल थ्योरी मान सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस ऑन द विंग टिप्स, लाइक विंग टिप्स में तो उनका एकदम ट्रांजिशन फेज होगा ना, बिकॉज यहाँ से यहाँ पर लो होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा. सो वहाँ पर एक सर्कुलेशन आता है, सर्कुलेशन ऑफ एयर. सो आई वांटेड टू सिमुलेट इन माय बीटेक फोर्थ ईयर, लाइक जब तो अपना CFD प्रोजेक्ट चलता था, अपन CFD की बातें जब करते थे. वो एक ऐसा टाइम, तेरा मेजर प्रोजेक्ट भी उसी में था ना? वो एक ऐसा टाइम था जब अपन लोग बस को पता नहीं था CFD क्या होता है, लेकिन हम लोग इतने अंदर घुस चुके थे उसके कि, लेकिन सीरियसली हम लोग को बस जो पैकेज सॉल्वर थे या एनसिस और ये सब हम लोग ब्लैक बॉक्स की तरह यूज करते थे. हमारा कुछ नहीं था, हमको पता नहीं था. हमने बस YouTube वीडियोस देखा, ओके ये करना है वो करना है, वैसा ही.
और उसमें आई थिंक बहुत अच्छा खासा ने वो प्रोजेक्ट किया था। मेरा भी प्रोजेक्ट बहुत देखने में बहुत हाई लेवल था, लेकिन मैंने भी किया वही था। मेरा आईसी इंजन रिलेटेड था, तो उसमें वाटर फ्लो होता था, कूलिंग पैटर्न देखना था, तो उसमें कॉम्बिनेशन था, फ्लो प्लस हीट ट्रांसफर था। तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट ठीक ठाक था, लेकिन बाद में मुझे भी पता चला कि अलग ही लेवल के लोग होते हैं जो एक्चुअली सीएफडी में काम करते हैं ना। तुम उस लेवल में प्रोजेक्ट बना के बोल नहीं सकते कि मुझे सीएफडी आता है। जो मतलब एक्चुअल कोडिंग करते हैं ना, वो एनसिस के बिना कर लेंगे। अगर एनसिस का सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है ना उनके पास, वो C++ में कोडिंग कर लेंगे। काम मैं भी कर रहा हूँ एज अ मॉडलिंग, मतलब चीज़ों को मॉडल करना। सो वी आर नॉट यूजिंग सम पैकेज, हम लोग नॉर्मल बेसिक इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन से स्टार्ट किए हैं, और उसी में वी आर चेंजिंग सम पैरामीटर्स टू गेट सम डिफरेंट रिजल्ट्स। So that is called research. मतलब you give a different model or you change something in that model and you get some different result and that you publish. That is called research. So यहाँ से start हुआ मेरा PhD में घुसना। हाँ, तो बेसिकली तुम्हें प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मिल गया, तो तुम्हें लगा कि इसमें PhD कर लेना चाहिए। Because I thought कि अगर यही चीज़ बाहर अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वही है, ये बहुत ही मुश्किल है मिलना ये वाला टॉपिक, या मेरा मनपसंद का टॉपिक मिलना इन PhD इज, वो भी आउटसाइड इज वेरी मतलब टफ मतलब बोले। तो फिर मतलब विद इन मतलब 10 to 12 months तुम्हें पता चला कि हाइपरलूप एक कंपटीशन है, और ये तू बहुत पहले से ही बोल रहा था। कब से तुझे पता चला? So in June we joined and अक्टूबर की बात है कि there was in our aerospace department only some MTech guys started this like one of the guys, Suyash thing, he started a team. So his like vision was to go into like go to SpaceX and show our pod to Elon Musk. So he was like so visionary that time. And student, master student. Master MTech student. He was some. So along with him, 2-3 more guys started this whole thing, and like 4 guys, I think there are actually 4 guys. So then along with him, हम लोग सब join हो गए, और धीरे धीरे करते करते फर्स्ट फेज तो ऐसे ही मजाक में पार हो गया था। हम लोगों ने एक डिजाइन दिया एंड इट वाज लाइक मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मतलब एकदम वहीं पर हम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ कि हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद तो सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे था? मतलब तुम्हें कुछ एब्स्ट्रैक्ट देना था? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट टाइप देना होता था कि तुम्हारा पॉड कैसा दिखेगा, क्या होगा उसके अंदर। तो हम लोग ने बहुत रिसर्च किया, फाइंड किया कि कैसे हम लोग का सबसे और अट्रैक्टिव पॉड बन सकता है। तो वैसे ही हमने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया। सेकंड स्टेज इज द वैलिडेशन, वेयर यू हैव टू वैलिडेट द डिजाइन की तुम कैसे बनाना चाहोगे और क्या। उसमें भी इन राइटिंग ही दोगे ना तुम? कुछ बना के नहीं? इन राइटिंग ओनली, लेकिन फिर भी उससे पता चल जाता है कि ये दैट इज मतलब वन ऑफ द मेजर क्या बोलते हैं बैरिकेड जो हमको पार करना था। तो वो हम लोग फर्स्ट बार में नहीं पार हो पाया, बिकॉज हम लोग ने बहुत एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत कम था। वी वरंट प्लान्ड फॉर दिस, वी वर ऑल गिविंग आवर सेम और सब बिजी थे, यहाँ तक कि देयर वाज अ टाइम वेयर वेरी लेस मेंबर्स वर देयर बिकॉज वेकेशन हो चुकी थी। उस टाइम पे हम लोग ने पूरा एक वैलिडेशन डिज़ाइन किया, और हर दिन डिज़ाइन रिपोर्ट चेंज होती थी, हर दिन एक पैरामीटर्स चेंज होते थे। एंड यू वोंट बिलीव इट, लाइक इतना प्रॉब्लम होता है ना अगर एक भी डिजाइन पैरामीटर चेंज हो जाता है, और वहाँ पर रोज चीजें चेंज होती थी ऐसे करके। मतलब तुम एक मॉडल बना के लाओ और बोलो कि नहीं यार ये चेंज हो गया, थोड़ा सा के लिए पूरा चेंज हो जाएगा ना, फिर बहुत सारे चेंज। मोमेंट तक हम लोग का पॉट एकदम काइंड ऑफ पूरा का पूरा फेरी टेल टाइप बन गया था, बहुत लंबा और वैसे। तो इसलिए आई थिंक हम लोग सेकेंड राउंड में नहीं जा पाए उस टाइम। बट ये दिस वी करेक्टेड इन आवर नेक्स्ट ईयर, वी हैव मेड द रियलिस्टिक पॉड with all the things, and we had good advisors from SpaceX. SpaceX gave us advisors. Okay, they were stationary over here in India or guiding from the source? We used to Skype call them and ask for suggestions. And तो ये बहुत अच्छा हुआ। We got to go to SpaceX. ओके, फाइनली तुम्हारा सेकेंड राउंड क्लियर हो गया जब तुमने वो दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दे कॉल्ड यू?
हाँ, so for competition 20 कि अब about 20 actual 21 teams actual were- बनाना है तुम्हें. actually made it. Previous time also about 20 teams made it. So now the competition is all about coming into top 3. So going there and वहाँ पर जाके तुमको बस पॉड जो है उसको डिफरेंट टेस्ट से पार करवाना है. मान लो अगर तुमने सारे टेस्ट पार कर लिए, देन यू गेट टू पुट योर पॉड इनटू दैट मेन ट्यूब, जो कि वैक्यूम ट्यूब होती है, जो मेन स्पेसएक्स की लाइक फोटोज और सब में देखा होगा. वो एक नॉर्मल सी एक रोड है, उसी के साइड में एक ट्यूब बनाई हुई है. यहाँ तक कि पता है बीच में से ना एक ट्रेन की पटरी भी जाती है. तो जब ट्रेन जब क्रॉस करती है ना उसमें से, तब पॉड को खोल के ऐसे खड़ा कर देते हैं. तो उसकी वजह से एक इस बार प्रॉब्लम भी हो गई थी. उसकी वजह से मिसलाइनमेंट हो गया था और पॉड जो पूरी की पूरी ट्यूब लेंथ है वो 1.2 माइल्स की थी. तो वो अबाउट 800 मीटर्स ही रह पाई. और उसके वजह से आई थिंक वॉर हाइपरलूप का पॉड भी फटा. अच्छा, किसका? वॉर हाइपरलूप जो टॉप टीम थी उसका पॉड फट भी गया. टॉप टीम कौन से कॉलेज से? ओके, सो इस बार की टॉप टीम्स वॉर हाइपरलूप हुई, देन स्विस लूप हुई. किस कॉलेज से थे? Same. See, War Hyperloop is from यूरोप का कोई कॉलेज ऐसा था कुछ? यूरोप के किसी कॉलेज? TUM, Technical University of Munich. Okay. Then there was one Switzerland team, Swiss Loop. और उसके बाद फिर दो टीम्स और थी, एक EPFL Loop और एक one more team, I'm forgetting his name, just out of my mind. So there were 4 finalists because this time we had more time. हमेशा 3 ही होती थी. And there was one consolation prize for MIT. MIT and us were like parallel, एकदम साइड जा रहे थे सब चीजों में. और यहाँ तक स्पैनर फ्रेंड्स थे, डिफरेंट इक्विपमेंट शेयर करते थे. एंड सो इन आवर टीम वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बाकी टीम्स वर ऑलरेडी टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन. वी वर टाइप ऑफ अंडरडॉग. लेकिन उससे एक चीज़ अच्छा भी होता है ना, कुछ नया लाने का टाइम होता है ना. तो अगर कोई टीम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका आइडिया थोड़ा डिफरेंट होता है. वी हैड मेनी न्यू थिंग्स. आवर कंट्रोल सिस्टम वाज वेरी नाइस. एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग इट. सो आवर प्रॉब्लम विद अस वाज दैट हमने एक्चुअली पार की, लेकिन तुम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था ना कि जैसे जो टीम टॉप किया ना वो रात में काम कर रहे थे, ऐसा हो रहा था ना. तुम्हें पहली बार कुछ समझ में नहीं आया जब ऐसे मतलब हम लोग फर्स्ट 1-2 दिन गए तो कोई टीम आई नहीं थी. हमको लगा थी यार सब लोग कितना लाइट ले रहे हैं. लेकिन बाद में पता लगा यार वो उनका पॉड अभी किसी कार्गो और ऐसी जगह पे है, वहाँ पर वो लोग पॉड बना रहे हैं. यहाँ तक कि एक ने तो जो हेलीकॉप्टर्स के हैंगर होते हैं ना वो किराए पे ले रखा था जस्ट साइड में. लाइक दे आर सो रिच. उन्हें ऑलरेडी आइडिया भी है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बजट होगा ना टोटल उतना उनका. तो तुम्हें मेन प्रॉब्लम्स क्या आए थे जब तुम असेंबल कर रहे थे ना वहाँ पे? पॉड बन के गया था. पॉड ऑलरेडी वाज असेंबल्ड देयर. असेंबली करना पड़ा था डिफरेंट पार्ट्स. हम बिकॉज़ सी कुछ असेंबल्ड पार्ट थे, कुछ असेंबल पार्ट थे. बट द मेन थिंग इज टू गेट ओवर द टेस्ट. See the advisors, what they will just come and see that okay this is safe or not, because we already had some accidents in Hyperloop competitions previously. So the advisors are very strict about this safety rules. So they just come and check, and they will comment if something is not wrong or reject if something is not wrong. So the comment part was the only time taking, because they will just say that okay change this. But for changing that, you have to do a lot of work. We Indians have to do a lot in America. Okay, you face some extra problem because of being outsider. What were those problems? See, first of the standards, like the standards are all inch and those things. So if you want a simple tool also, we had to. Okay, the system will also be different, no? Yeah, everything. Torque system and all. Pounds, was it in pounds? Newton meter. PSI and those things were there. Here we use in kg meter also. Okay. So the main problem was we weren't having a middle people role. Like in others team already have some industrial partnership and those things. So they were already knowing if something has to be changed, then they won't take that much time. Even we on the 4th day we got to know that we can hire a truck and take our pod and work overnight. So these were some of the things which we couldn't do.
but we gained experience. Yes. So if we are trying for this year. Okay, So- there's always next year, Hmm. and visa is valid for 1 year. Yeah. So Mehta will be jumping No, over there. we would again be applying for visa because Hmm. that competition will take time, I think. Hmm. Okay. Okay, so that enough was about me. other than that, how was Los Angeles, Mehta? Okay, Los Angeles was just Hollywood. And Las Vegas. Not about Las Vegas. We went there, Las Vegas. He did not go to Las Vegas, especially not the strip clubs. Okay, moving on. Okay, moving on. How was Los Angeles? Los Angeles is a nice city. It's kind of group of different cities, and they are club. They are known as Los Angeles. So there is one full urban town, planned town, and then there is surrounding cities. And on there is some hillside. There you can see Hollywood sign and those things. Piक्चर्स भी है ना भाई तेरे पास? पिक्चर्स दिखाएंगे इनको. For more pictures, find Anshuman Mehta on Instagram. Oh, yeah. और बताओ, ये सब हो गया, ठीक है. अब मेहता इज बैक एंड फोकस अगेन टू हिज PhD. और Yeah, रिसर्च my इसका चल रहा है. PhD took toll because of Hyperloop. बट तुझे बहुत रिकॉग्निशन भी मिला उसके वजह से. Yes, yes. तो अच्छा ही है जो भी हुआ वो. उसमें मतलब जैसे बाकी लोग भी जो लोग प्लेसमेंट लेके भी निकले ना, उन्हें भी तो बहुत Even फायदा हुआ. one of my senior is still continuing his MS, which time is already been gone, but he is still continuing, like still doing his thesis work. So MS का commendable तो- job. He was so busy in Hyperloop. He just lost count of everything else. Okay, that But now kind he has of been placed. placed in Reliance. Yeah, Reliance because of Hyperloop. Well, because of Hyperloop, some of the boys over here got placed in Reliance, who is starting something like a Hyperloop, no? Yeah, they are working Close to it. Skytrain. Yeah. It requires that technology and people who are experienced with it. What is the best? Like you were the best in India, so obviously they are going to hire you guys. Only one team went from India, no? Yeah, one previous Another one was Pune University. That was in competition. Bitlani went for the first time. Okay. I would say. But at that time the competition rule were not so tough. Like the propulsion was already given by SpaceX. But now we have to again design our whole propulsion system. That is a huge new task. Can you tell us something about the propulsion for those who are nerdy guys who want to know about the engineering aspect of Okay. it? I also want to know because I also do not know. See, the pod consists of different parts. So, if we see the regulations of the competition, so there is 1.2 miles track. Okay, 1 mile track is 1.2 kilometers Okay. track. Okay. So what happens there is like we have to propel up to the highest speed and then brake also at the same given amount of distance. So we now what we have is we should have a propulsion system, then control system. So what was the basic propulsion system? It was This time the realistic design I was saying. The second electric one, propulsion yeah, or electric propulsion. electric It was propulsion. just motors which was run by the batteries. So yeah, the choice of batteries and motors are the huge thing that costs us. Okay, what was the cost of the pod? So the budget of the pod was about including everything, it was above 1 crore. Whatever it was, I'm sure that it was the cheapest over there because we Indians always do the things in the cheapest way. It was not that cheap. Because see the traveling what do you call the transporting of the pod costs us pod- so much money because you cannot just carry batteries around and say I have to transfer this. So we have to get many approvals in sense like we have to get some battery approvals. We have to set some to make some standard. Okay, so it takes a lot of time and money. So that's what carrying, we are Asia's only team. Okay, so carrying our pod from India to Los Angeles like that cost us like by ship huge route and all. part of our budget. Apart from it, us traveling also cost us. And then pod was if you say that only pod manufacturing, then it cost it was at the same level. But we already had
top-notch chassis and everything was to the From point. where, chassis and all, where do you get from? So chassis we constructed by our own. So it was a kind Okay, of design you did from scratch, from scratch. and then you So, gave it to some fabrication. Yeah, fabrication industry. Okay. So we created our carbon fiber composites. Complete carbon fiber. Yeah. So the whole we tested it by standing on it. Okay, like okay. 2 or 3 people were standing Oh, on they it. make Lamborghinis out of carbon fiber, definitely. So it was very light and strong. And there were some complications with the braking pad, like where it has the most highest force. So there we had some aluminum fittings. So it was whole things were designed and given like from the design phase to. Okay. ओके, जो भी हुआ एंड में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और नेक्स्ट ईयर फिर से जो we are prepared for the next year. ओके, इंडिया इज नाउ ऑन द व्हाट डू वी कॉल देयर नेविगेशन सिस्टम. Even Siya's vision was this, like this time we will just give them a realistic project, but next time it will be something new, something innovative, something having vertical stars. वैसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा ही होगा, why do you do this? इन पर्सन मैं गाइड कर रहा हूँ. उस टाइम पे एक लड़की का मैसेज आया था ना, वो मेरे से 2 साल सीनियर थी, 2014 पास आउट थी, और वो बार्क इंटरव्यू में पिछले साल अपीयर कर चुकी थी, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, समझ रहा है, और उस साल वो सेलेक्ट नहीं हुई थी. तो बोली मुझे बार्क ही जाना है, तो मुझे गाइड करो. तो मैं उसे पर्सनली गाइड कर रहा था. वो पता है सेलेक्ट ही नहीं हुई, वो टॉपर बन गई केमिकल, वो प्लस वो केमिकल ब्रांच की थी. सोच रहा है मैं मैकेनिकल का था. मैं उसे बस स्ट्रैटेजी बता रहा था कि इस तरह से करना है. और उस साल 12 लोग का सिलेक्शन हुआ था, और मैं अपने तैयारी कर रहा था इसरो में जाने का. अब फिर उन 12 में से ना, मतलब उस ग्रुप में 40 लोग थे, उसमें से एक लड़का था ना जिसका बार्क में सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसरो में वो पूछा कि भैया मेरा इसरो का है इंटरव्यू, मुझे उसके लिए गाइड कर दो. तो मैंने बोला ये सब्जेक्ट पढ़ो, और मैं खुद ही तैयारी कर रहा हूँ इसरो इंटरव्यू का. ठीक है, तो वो मेरा कलीग है अभी, उसका इसरो में सिलेक्शन हो गया. ऐसा मतलब मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला ना ये यूट्यूब के. कोई पैसा ऐसे नहीं खरीद सकता. तुम मुझे 4 लाख रुपए दे दो ना, वो कभी कंपेयर नहीं करेगा. मतलब मैं बार्क में ना मुंबई फाइनल में गया ना, तो मैं ट्रेनी हॉस्टल में रुका हुआ था. ठीक है, और वहाँ मुझे लोग मिले कि मैंने आपका वीडियो देखा था, वो सेलेक्ट होके वहाँ बैठे हुए. बोला अरे भैया आप सीनियर हो. हाँ बताओ मैं कुछ बताऊँ. इसके बाद मेरे रूम में 2 रूममेट थे. अभी मैं बोलना स्टार्ट किया ना, 1 घंटा तक बोल ही रहा हूँ. उनके क्वेश्चन आते जा रहे हैं. 2 घंटा में देखो रूम में 15 लोग भर गए. हाँ सब अगल बगल से सब आके वही NBH में बैठे हुए हैं.